Civil Aviation Policy 1995 incorporated subsumption of two existing airport authorities of India at that time, domestic and international, and came in Airport Authority of India. And it marked up the beginning of open sky policy. That is the beginning of low-cost carriers. They are called low-frill carriers. That there was a combination, basically. Multiple air service providers, income level per capita increasing in the positive outcome of globalization. Automatically, the airfare was coming down and our purchasing power was going up. This was the reason that there was mainstreaming done. So if 1995 mainstreaming was done, then what is Civil Aviation Policy 2016? Why we need to mobilize on privatization of the airports or airport infrastructure. However, India definitely cannot ease out the aerospace. उस पॉइंट को समझना है. तो 3 civil aviation policies, I have talked about them, so I'll not be writing much about it. Quickly getting onto my board, partial with Civil Aviation Policy 1995. About civil aviation, ज़्यादा historical जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी Aviation Policy 1953, Aviation Policy 1995. 1953, class apart. This is what you have to take into account. And when I say class apart, I'm essentially talking about consolidation. It was class apart with consolidation of all the fragmented air service providers during that time. And that marked up the beginning of Air India, Indian Airlines, and Pavan. 1995, it is mainstreaming. 1995, it was Airport Authority of India. And 1995, it was Civil Aviation Infrastructure Developed with Airport and Aerospace. हम airport और aerospace को civil aviation के constituent में justify करते हैं. We don't take the consideration of city side infrastructure. वो by chance की बात है. जैसे Delhi International Airport Limited, which is called Indira Gandhi International Airport Limited, have been developed by BOOT player, जिसने city side भी develop किया है. So we are having the GMR के बारे में बात कर रहे हैं. तो GMR has developed the airport and has developed city side also. तो कई बार इस तरह का similar player में coordination है. Otherwise city side infrastructure is not included. So mainstreaming किसकी वजह से हुआ? Mainstreaming हुआ with the reference of low cost carrier. और low cost carrier की शुरुआत कैसे हो गई? Open sky policy. Older है, but that gives me the lead. Sometimes I write my answer and I have to give examiner the clarity of the reference. अब जो aerospace का factor है, उसमें Airport Authority of India का single handed domain है. अब इसको ध्यान से समझना. Aerospace के management के लिए, and it's a big aerospace actually. When I talk about aerospace, it is 2.8 million square nautical miles. 1 nautical mile will be approximately 2 kilometers. So 2.8 million square nautical mile का aerospace है. और ये जो aerospace है पूरा, हम commercial aerospace की बात करें, air defense space की बात नहीं करें. ये जो पूरा Bay of Bengal और Arabian Sea up to 10 degrees in Indian Ocean region and पूरा इंडिया का लैंड मास को कवर करता है. इतने बड़े एरोस्पेस को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिंगल हैंडेडली मैनेज करती है विद CNS, कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस, सिंगल हैंडेड. और इसको करने के लिए FIRs है, RCDU है और गदर. FIRs आर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, RCDU इज रेडियो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यूनिट, 1980 से काम कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत. It is basically the radio transmitters that facilitates the connectivity between the communication towers of the cockpit, है ना? Radio construction and develop and geo augmented navigation system at par with Simran, जो हमने Indian Railways के साथ करा था. It is satellite based communication and it basically has got the entire aerospace applied with it. Communication, navigation, surveillance, CNS. Is being applied absolutely with reference to Airport Authority of India. And why that is the case? Because India is geopolitically sensitive. We are a sensitive country and thus we cannot make any private player come into the management of the aerospace. So aerospace management का पूरा जिम्मेदारी जो है वो Airport Authority of India के पास है. और जो airport infrastructure development है, at one point we say
इट इज मेन स्ट्रीम। तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम हुआ, मेन स्ट्रीम हुआ तभी तो एयरपोर्ट डेवलपमेंट हुए। लेकिन 1995 का जो डेवलपमेंट अगर आप जज करें तो उस डेवलपमेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखना। लेस देन 80 टाउन्स, वी यूज टाउन्स, है ना, सेंसस में टाउन्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपको याद है। लेस देन 80 टाउन्स, मोर देन 90% ऑफ एयर। और अगर आप लोग याद करो, हमने जब आपको अर्बन बताया था, तो आई हैव गॉट अप्रोक्सीमेट 8,000 अर्बन प्लेसेस इन द कंट्री। लेस देन 80 के पास 90% रूट कनेक्टिविटी है। प्रॉब्लम वन। प्रॉब्लम दूसरा अगर आप जज करना शुरू करोगे तो आई हैव गॉट लेस देन 800 एयर स्ट्रिप्स, लेस देन 800, और जिसमें जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसको आप सबके साथ कंबाइन कर लो, प्राइवेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको कंबाइन करके। और इसमें जो है 78 ही हैं जो कि एयर ट्रैफिक एक्चुअली मैनेज कर। प्रॉब्लम नंबर 3, हमारे पास सिर्फ 1 शेड्यूल्ड रजिस्टर्ड कैरियर है। जब आप लो फ्रिल कैरियर्स की बात करते हो, जिसमें कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, आप उनके बारे में ना भी बात करो, जेट भी अब ग्राउंडेड है, किंगफिशर की हमने स्टोरी सुनी हुई है। It is basically that we have got only Air India that also have been disinvested. So very clearly, only 1 scheduled carrier minded, we are the most populous country of the world and 7th largest country. क्या मुझे उड़ान की जरूरत है? जो सिविल एविएशन पॉलिसी 2016. What is Civil Aviation Policy 2016 doing? It is building over the success of Civil Aviation Policy 1995. अब सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 किस तरह का डिमार्केशन कर रही है? सिविल एविएशन पॉलिसी में आप 2 चीजें अप्लाई करो। पहली चीज जो आपको अप्लाई करनी है वो है कैरियर्स, लो कॉस्ट कैरियर्स के नंबर को इंक्रीज करना। इसलिए आपने यहाँ पर कैपिंग अप ऑफ द प्राइसेस विद द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का फैक्टर दिया। मतलब ट्रैवल डिस्टेंस को लेकर या टाइम को लेकर हाफ ऑफ द सीट में यू आर कैपिंग द प्राइस एंड हाफ ऑफ द सीट में आप कॉम्पिटिटिव एज पर प्राइसिंग डालो। तो आप प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज कर रहे हो किस चीज को इंप्रूव करने के लिए? इसको इंप्रूव करने के लिए। So I want to have more operate so that there is competitive growth that we can apply. Scheduled carrier in the country marks up its beginning. पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंटर जो आप अप्लाई कर रहे हो वो एसोसिएट करा सिविल एविएशन पॉलिसी से पूरे देश का आम नागरिक। So it by default is regional connectivities. And when I talk about regional connectivity, I want to overcome the problem that has been applied with this. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव टेकन अप द मोबिलाइजेशन ऑफ कंप्लीट, माने जो आप डिमार्केशन कर रहे हो, रीजनल कनेक्टिविटी हैव मार्क्ड अप, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर उड़ान हैव मार्क्ड अप 153 एयरपोर्ट्स, 12 वाटर ड्रोन्स हैव बीन गिवन आइडेंटिफिकेशन फॉर RCS फ्लाइट्स। तो रीजनल कनेक्टिविटी में जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है उसको आप डिमार्केट कर रहे हो, हैंड रेस करके बताओ। ये तो आइडेंटिफिकेशन का डिमार्केशन है और इसमें मोबिलाइजेशन भी वी हैव टेकन इनटू अकाउंट। अच्छा, इसके साथ जो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एड ऑन करनी है सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के साथ, वो है, अब आप हमें बता देना जो आपको प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ शुरू में समझाया था NIP और NMP। तो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप हमें जल्दी से टाइप करके बता देना कि NMP में ले रहे हो उसको कि NIP में ले रहे हो। आई हैव गॉट द मोबिलाइजेशन ऑफ PPP मोड पर वी हैव गिवन 6 एयरपोर्ट्स, अहमदाबाद, जयपुर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखनऊ, गुवाहाटी, ये सब डेवलप हुए थे अंडर सिविल एविएशन पॉलिसी 1995। तिरुवनंतपुरम लीज गिवन इज 50 years and the company is Adani। PPP मोड क्या किया? इसमें डाल दिया, आपने लीज पर दे दिया प्राइवेट प्लेयर को, ऑपरेट करो, मेंटेन करो, शाबाश सचिन। इट इज NIP, you are giving them in lease, they will be maintaining, they will be operating, less of government, more of governance, that is what we are taking up into account। और इसके अलावा जो NMP है, NMP में हमने 25 एयरपोर्ट को मोनेटाइजेशन के लिए छोड़ दिया है, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये गया आपका NIP में। MS अदानी न्यूज़पेपर में आया था, काफी ह्यू एंड क्राई भी हुआ था।
और NMP के अंतर्गत, क्योंकि हमें अपना एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट करना है, डेवलपमेंट हुआ बट वो इतना प्रोमिनेंटली नहीं हुआ जितना हमें चाहिए. सो वी हैव गॉट 25 airports now which are being mobilized with monetization pipeline which will be correlated with different players. इसमें आप क्या कर रहे हैं, डिमार्केशन कर रहे हैं ऑफ दी प्राइवेट हैंड. They are basically generating out. You have leased them. अब आप अपने आप काम करो. And you have actually sold the asset for the certain time period. 25 airports एकदम एक सारे नाम याद नहीं रख सकते. इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को ओपन करके आप सारे नाम भी देख सकते हो. But it has got pan Indian presence like भुवनेश्वर है इसमें, वाराणसी है. If I have to just take some of them. So notice करो सारे नॉन मेट्रो एयरपोर्ट हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु आर नॉट बीन इंक्लूडेड. जो जितने नॉन मेट्रो एयरपोर्ट आपने 1995 में डेवलप किए थे, दे आर बीन कवर्ड है ना. सो वाराणसी ले लिया, अमृतसर इज इंक्लूडेड है, रायपुर है. यू कैन टेक सम ऑफ द एग्जांपल. भोपाल है. सो सेंट्रल इंडिया में काफी लंबा लिस्ट है. हुबली आपको बताया था हमने when we were talking about railways, so you can take that. So Udan incorporate 3 constituent. Constituent 1, more carriers in the private operation. Reason, I want to increase the competitive fare reduction so that there is more and more connectivity generated. And that is the reason half of the seat cap prices and half of the seat on the competitive pitch. Regional connectivity, we want to increase civil aviation infrastructure. So RCS उड़ान में आपने 153 एयरपोर्ट्स को डिमार्केशन दिया है. हमारे पास एयरपोर्ट्स जो ऑपरेशनल थे बिफोर 2016 वर लेस देन 78. एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ अम्ब्रेला, की अम्ब्रेला प्रोग्राम्स NIP एंड NMP. तो NIP में हमने 50 साल का लीड दे दिया है of lease domain to Adani for the 6 airports, so you can take that. And 25 airport को Airport Authority of India ने NMP के अंतर्गत डिमार्केशन दिया है, मोनेटाइजेशन कर दिया ताकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास थोड़ा लिक्विडिटी आए. इट कैन मोबिलाइज ऑन इट्स फंक्शनिंग डोमेन इन द परमिट. सो RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की जरूरत इन 3 पॉइंटर्स के हिसाब से है. मेरे ख्याल से इससे आप बहुत आराम से अपना क्वेश्चन फ्रेम को तैयार कर सकते हो. और अगर कोई भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समथिंग विच इज वेरी से स्पेसिफिक मल्टीपल चॉइस में, दैट कैन आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट. एरोस्पेस को हम ईज नहीं करते प्राइवेट हैंड पे. डेवलप्ड वर्ल्ड में लार्जली जब आप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप एरोस्पेस को, एयरपोर्ट को, सिटी साइड को, सबको कनेक्ट करके चलते हैं. हमारे कंट्री में सिटी साइड तो कभी कनेक्टेड था ही नहीं, और एरोस्पेस को हम प्राइवेट हैंड में नहीं देते. हैंड रेस कर दो, आपको समझ में आ गया. जैसे इस मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे जो कंटेम्प्रेरी चीज हमारे दिमाग में आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं. अमृतकाल 1947 को चार्ट आउट किया है इस मॉडल मिनिस्ट्री ने. यही से शुरुआत कर लेते हैं, फिर उसके बाद कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी चीजों को ऐड कर लेते हैं. ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 मुंबई में हुआ था. ये इसी को 2 पॉइंटर्स हैं हमारे साथ लिखे. बीओ चिदम्बरम IAS पुतिपोरिन. क्योंकि आप लोगों को आपके स्कूल एटलस में पुराना नाम ही मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. These are being set up as green hydrogen bunkers. तो यहाँ पर लिख दे. So Ministry of Port, Shipping and Waterways have been added with the new Amritkal Vision 2047 2023 में मुंबई में जो आपका समिट हुआ, ग्लोबल मरीटाइम समिट, वहां पर this has been prepared. And it is basically aiming at creating carbon neutral green fuel and hydrogen production and distribution hub with Indian ports. Paradip, Deen Dayal और Chidambaram are the important ports that have been selected towards the mobilization of it. एक ये अमृतकाल को आप अपने दिमाग में रख सकते हो, ये important domain है. अच्छा, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, रोड एंड वाटरवेज के बारे में बात करते हो, you have got multiple domains to be taken care of. और इन सारे मल्टीपल डोमेन को ध्यान में रखने के लिए आपको कैटेगरीज डिवाइड कर देनी चाहिए. तीनों कैटेगरी पर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, किसी भी डेवलपमेंट को आपने छोड़ना नहीं. तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आसान वाला काम को पिकअप करके हटा देते हैं, उसके बाद फिर हम पोर्ट सेगमेंट पर आराम से लेकर आ जाएंगे आपको. ठीक है.
तो हम क्या कर रहे हैं, शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम शिपिंग के बारे में बात करते हैं तो वी हैव गॉट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज टू बी अप्लाइड। तो हम यहाँ से कैटेगरीज ले लेते हैं। हम सबसे पहले बात करें शिपिंग के लिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे वाटरवेज के लिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे पोर्ट्स के लिए। इसके बाद वी विल बी लेफ्ट आउट विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। कवर हो जाए तो आज ही हम इसको कवर करके खत्म करते हैं। अच्छा, हम शिपिंग सेक्टर के बारे में बात करें। अब जरा ध्यान से सुनना। द शिपिंग सेक्टर, इफ आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट, जब आप शिपिंग फ्लीट के बारे में बात करते हो, आप मैक्सिमम ऑफ इंडियन ट्रेड को एसोसिएट करके चल रहे हो मरी टाइम रूट से। मरी टाइम रूट से आपका मैक्सिमम ट्रेड जा रहा है। और जब आप शिपिंग के बारे में बात कर रहे हो तो हमारे पास शिपिंग कैपेसिटी जो है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा क्यों है? खाली लेस देन 2% of the global fleet capacity when we are talking about one of the largest economic setup of the world. It is basically because our maximum of the global trade, जितना भी टनेज है उसमें हम फॉरेन शिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज फॉरेन शिप्स में सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में जो मूवमेंट है वो बहुत फ्रीक्वेंट है। दैट गिव्स मी कॉस्ट एडवांटेज। जो हमारी लोकल शिपिंग कंपनीज है उनका नेविगेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो इट गिव्स मी हायर कॉस्ट। So it is cost benefit in short term, but it is leading to the foreign exchange outflow. To contain that foreign exchange outflow and enhance out the shipping fleet capacity, flagship program has been mobilized to provide subsidy to the Indian shipping companies in global tender. आपको बात समझ में आ रहा है? शिपिंग कंपनीज को आप सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो टेंडर में लोएस्ट कोटेशन देकर टेंडर लें और अपनी शिपिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सके। बात समझ में आया? दिस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मरी टाइम एजेंडा। भी थोड़ी देर बाद इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हैंड रेस करके बताएंगे। इट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी सपोर्ट फॉर ग्लोबल टेंडर। हमारे शिपिंग में हमें समझ में आ गया भाई लेस देन 2% हमारा जो शिपिंग है वो ग्लोबल शिपिंग फ्लीट कैपेसिटी है। पर जो हम इसको अगर जस्टिफाई करें कि हमारे पास जो ये लेस देन 2% का जो फ्लीट कैपेसिटी है, इसको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? सो वी एसोसिएट इट विद द मल्टीपल शिपयार्ड्स। और जब आप इन शिपयार्ड्स के बारे में बात करते हो तो ये बेसिक एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन हो जाता है। सो आई अप्लाई दीज शिपयार्ड्स टू बी रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेयर्स, स्टेट प्लेयर्स एंड द central public sector players. So I've got Kochi shipyard, Hindustan shipyard, Kolkata shipyard, Mazagaon shipyard। कोलकाता के साथ ऐड कर दो गार्डन बीच फैक्ट्री, ये भी कोलकाता में ही है। एंड वी हैव गॉट गोवा शिपयार्ड, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास शिपिंग फ्लीट की कैपेसिटी नहीं है, बट कम है। हम अपनी शिपिंग फ्लीट हमारी बहुत लेस है, बट ये डेवलपमेंट दैट वी अप्लाई ऑन। आदित्य बिरला ग्रुप सूरत में है, L&T, लार्सन एंड टूब्रो, हाजीरा गुजरात है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो स्टेट PSC गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का है। इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आलंग सोसिया। आलंग सोसिया इज इन भावनगर। भावनगर को आप एक माइनर पोर्ट ऑफ गुजरात बोलते हैं। आलंग सोसिया इज कोरिलेटेड विद डोमिनेटिंग शिप रिपेयर, स्क्रैपिंग, रिसाइकलिंग फैक्टर। आलंग सोसिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। गुजरात स्टेट मरीटाइम बोर्ड का स्टेट पब्लिक सेक्टर प्लेयर है भावनगर में। तो शिपिंग फ्लीट के मामले में हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एज नहीं है, लेकिन फिर भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर्स, वी हैव गॉट मल्टीपल ऑफ इट। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी है पिपलाव में, लिख लो। RIL का भी है, इट्स पिपलाव। अमरेली, ये भी गुजरात में है। मैप में खोलोगे तो पिपावर नहीं दिखेगा, अमरेली दिखेगा। आलंग सोसिया नहीं दिखेगा, भावनगर दिखेगा, बिकॉज दे आर दी प्रिंसिपल लोकेशन जिसके अंदर आप ले रहे हैं। तो व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया का शिप बिल्डिंग, वी आर हैविंग रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी। शिप रिसाइकलिंग विच वी हैव इवॉल्व्ड एज अ बिग प्लेयर, एंड शिप रिसाइकिल के साथ जितना एनवायरमेंटल चैलेंजेस है उन सबको अबेट करने के लिए न्यू पॉलिसीज अंडर CPC भी है। तो शिपिंग के साथ दो चीजें याद रखो, एक कि भाई फ्लीट कैपेसिटी हमारी बहुत कम है, जिसके लिए हमने फ्लैगशिप प्रोग्राम मोबिलाइज किया है, दैट इज सब्सिडी सपोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनीज फॉर द ग्लोबल टेंडर। और जो शिप यार्ड्स हैं, शिप प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग दोनों के लिए है, लेकिन इंडिया इज इनकॉर्पोरेटिंग, डोमिनेटिंग से व्हेन इट कम्स टू शिप रिसाइकलिंग। 30% ऑफ द ग्लोबल शेयर।
हैंड रेस कर देंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 होता है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस नोडल मिनिस्ट्री, यहाँ पर बल्क ज्यादा है इसलिए इसको इस तरह से जज करना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंटर पर हमें क्या लेना है, वाटरवेज को लेना है। तो वी सिलेक्टेड टू पिक अप वाटरवेज द नेक्स्ट, so it is जल मार्ग विकास। And when I talk about Jal Marg Vikas, I have got a map which will help you in picking up the things easily. So I'm just getting on there. अब इस मैप को जरा ध्यान से देखो। जब आप बात करते हो ना जल मार्ग विकास की, तो आप बात करते हो नेशनल नेविगेबल वाटरवेज के बारे में। Jal Marg Vikas, that is Inland Waterway Authority of India, came into being in 1986. अब आपने इसको नोडल मिनिस्ट्री के साथ सबज्यूम कर लिया है। India is not a very good case when it comes on to inland water, but India has mobilized some of the national waterways. और ये some of the national waterways को आपको नहीं जज करना है, तो इसको आप ब्लॉक बाय ब्लॉक जज कर लीजिए। और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं, तो आपकी नॉलेज में इनकी जानकारी होनी चाहिए। So if I have to highlight it, I'll simply say from Prayagraj to Haldia, ये navigable track है नेशनल वाटरवे 1। इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज टू हल्दिया, 1620 किलोमीटर नेचुरल नेविगेबल ट्रैक। ये नेचुरल नेविगेबल ट्रैक जो है, इसको सबसे पहला वाटरवे के तौर पर मोबिलाइज किया गया था। Yes, Akshay, we are talking about cargo ships, but when I talk about the companies like Hindustan Shipyard, they do have got the participation related to Ministry of Defense as well. But we are focusing only on cargo, merchant vessels right now. Is that comfortable with us? We are taking it up in the functioning domain of logistics with the trade. We are not talking about a defense. ठीक? So lengthiest waterway of the country is National Waterway 1, natural navigable track है। एक बार मैप पर देखेंगे से बड़े आराम से याद हो जाता है। दूसरा नेविगेबल रूट जो है वो सादिया से लेकर धुबरी तक है, ये भी नेचुरल है। इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र, अप्रोक्सीमेटली 890 किलोमीटर्स। ये सादिया से लेकर धुबरी तक नेचुरल नेविगेबल ट्रैक। ये दोनों नेचुरल नेविगेबल ट्रैक मार्क्ड अप इट्स बिगिनिंग इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में हमारा मोबिलाइजेशन हुआ, जिसमें आर्टिफिशियल वाटरवेज आने शुरू हुए। तो अब यहां ध्यान से देखो, दिस इज माई वाटरवे 1, दिस इज माई वाटरवे 2। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा सकते हैं, क्या लेंथ है, नेचुरल नेविगेबल है कि आर्टिफिशियल वाटरवे है, विच आर द स्टेट्स दैट आर कनेक्टेड, एक्सेट्रा, फैक्चुअल क्वेश्चन। एंड देन व्हेन आई कम ऑन टू नंबर 3, नेशनल वाटरवे नंबर 3, ध्यान से देखेंगे, इट इज फ्रॉम कोल्लम टू कोट्टायम। कोलम से कोट्टायम प्लीज रिकॉल करोगे, रेयर अर्थ लिमिटेड थोरियम डिपॉजिट है, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट कनाल। ये नेशनल वाटरवे 3 है। नेशनल वाटरवे 3 is the first artificial waterway of the country. पहला आर्टिफिशियल वाटरवे। आपने परपेंडिकुलरली लिंक किया है नेविगेबल रिवर्स को, वेस्ट कोस्ट कनाल बोलते हैं इसको। और इस कनाल के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है वो आप यहां से ही नाम ले लो, और मेरे ख्याल से इस तरह से नाम याद करना भी बड़ा आसान होता है। चंपाकरा कनाल, उद्योग मंडल कनाल। कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हो, कोल्लम से कोट्टायम। हैंड रेस कर देना, 200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, पहला आर्टिफिशियल वाटरवे। क्योंकि जो नेशनल वाटरवे 1 है या नेशनल वाटरवे 2 है, वो दोनों नेचुरल नेविगेबल ट्रैक। इसके बाद जो हमने मोबिलाइज किया नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 4 इज बेसिकली लेंथीएस्ट आर्टिफिशियल वाटरवे। अब इसको अगर आपने नोटिस करना है, आप इसको काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक लेकर आ रहे हो। काकीनाडा से जब पुदुचेरी तक लाओगे तो आपने इसमें कौन कौन से रिवर्स को लिंक अप किया, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स और समझने की कोशिश करना। गोदावरी, यहाँ आएगा कोलेरू लेक, ये आएगा कृष्णा, यहाँ पर आएगा पेनेरू, यहाँ पर आएगा पलार। तो आपने पेनेरू रिवर को भी लिंक किया है, आपने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ है, आपने इसको पलार भी इसमें लिंक किया है। काकीनाडा से लेकर आप इसको पुदुचेरी तक लेकर जा रहे हैं। तो विच आर द रिवर्स दैट यू हैव लिंक्ड विद इट? द रिवर्स दैट आई हैव लिंक्ड विद इट इज गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, पलार विद कोलेरू लेक। काकीनाडा कनाल है, एलरू कनाल है, बकिंगम कनाल है, 1000
78, 1100 किलोमीटर राउंड ऑफ कर लो। आर्टिफिशियल वाटरवे है, लेंथीएस्ट आर्टिफिशियल वाटरवे ऑफ द कंट्री। काकीनाडा इज अ माइनर पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। काकीनाडा से पुदुचेरी को लिंक किया है। बात समझ में आई है तो हैंड रेज करेंगे। और जो नेशनल वाटरवे 5 है, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों को कंबाइन करा है। क्योंकि आप देखो इसको हम कैसे डिमार्केट करते हैं, धामरा, तालचर से लेकर धमरा, तो तालचर से लेकर धमरा तक तो रिवर ब्रह्मणी है, वो नेविगेबल ट्रैक है। लेकिन आप इसको लिंक आउट कर रहे हो विद द डोमेन ऑफ महानदी, तो आप इसको डिमार्केट कर रहे हो महानदी लिंक कनाल। सो ब्रह्मणी डेल्टा एंड महानदी लिंक कनाल। तालचर याद आ रहा है, वी हैव टेकन इट एज कोल डिपॉजिट दैट इज आइडेंटिफाइड विद द पेनिनसुलर रिवर बेसिन, है ना। तो नेविगेबल लिंक भी है, नेचुरल और कंबाइंड भी है। 588 किलोमीटर, राउंड ऑफ कर लो 600 किलोमीटर। इट इज बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल वाटर। एंड इसके अलावा आपके दिमाग में रहना चाहिए मांडवी जुआरी एंड बाराक रिवर एज द अदर मोबालाइज्ड वाटरवे। 111 वाटरवेज हैं जो पाइपलाइन में है मोबालाइजेशन के। These are the important examples that collectively account for near 4,500 kilometers of the developed national waterways. National waterways do incorporate the constituent that is related with the nodal ministry. कौन से? National Waterway 1, Prayagraj to Haldia. National Waterway 2, Sadia to Dhubari. National Waterway 3, Kollam to Kottayam. National Waterway 4, Kakinada to Puducherry. National Waterway 5, Talchar Dhamra Mahanadi Link Canal, and others, Mandavi Zuari in Goa, Barak River when I take it up with Mizoram and Assam. I want to go ahead from all of you. फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं एंड यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ हैंडलिंग देम। इसमें जो एक नया अटैचमेंट है ये आपकी नॉलेज में आना चाहिए, तो इसको आप याद रख लीजिए। नेशनल वाटरवे 1, भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, हमने 86 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें मल्टी मोडल टर्मिनल और नेविगेबल लॉक्स का मोबालाइजेशन किया है रिसेंटली, तो यू कैन इजिली टेक अप द रेफरेंस ऑफ मल्टी मोडल टर्मिनल। इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज में है, वाराणसी में है एंड हल्दिया में है, ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। एंड नेविगेबल लॉक का जो मोबालाइजेशन है वो फरक्का में किया गया है। याद करो, फरक्का बराज, फरक्का पर रिवर गंगा एंटर कर जाती है बांग्लादेश एज पद्मा एंड हुगली एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी रिमेन्स इन इंडिया। ऐड कर लो अपने डायग्राम में या लिस्ट बना लो। मल्टी मोडल टर्मिनल्स have been mobilized in increasing efficiency of National Waterway 1. It is operational since 1986. Haldia, Varanasi and Prayagraj are the multimodal terminals for it, and Farakka is the navigable lock that has been mobilized. लॉक को आपको नेविगेशन स्टेयरकेस के तौर पर समझना चाहिए। शिपिंग लेस देन 2% of the global fleet. Waterways, Inland Waterway Authority of India, Jal Marg Vikas, and it has been subsumed the same ministry, so Ministry of Shipping, Ports and Waterways. हमने शिपिंग भी ले लिया, पोर्ट्स भी ले लिया। अब हम क्या करें, हम सीधा जा रहे हैं, पोर्ट नहीं लिया, पोर्ट पर अभी आते हैं, बोट पर आते हैं। पहले बोट पर आने के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, उसके बाद मैप पर सारी चीजें समझा देंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं पोर्ट सेगमेंट पर जाना है हमें। So number 3 पर पहुंचना है हमें। So what I do is I simply remove all this. Landlord model क्या होता है? Major Port Trust Act 1963 को हमने 2021 में अमेंड किया। Major Port Trust identifies that all the major ports are in the control of Union Government. किसी भी स्टेट में होगा, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है मेजर पोर्ट। माइनर पोर्ट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। 1963 मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट लैंडलॉर्ड मॉडल पर प्राइवेट प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर रहा था आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 1995। तो लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होगा, आप कोई भी चीज ऑपरेट करोगे आपके ऊपर हमेशा एक तलवार टंगी रहेगी, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अब हमने इसको सर्विस पोर्ट मॉडल बना दिया। सर्विस पोर्ट मॉडल का मतलब क्या है,
जो भी प्राइवेट ऑपरेटर है उसने उसको आपने 40 साल का लीज दे दिया है पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी का, और जो नॉन पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी है उसको 20 साल का लीज दे दिया। तो ये कैप्टिव पॉलिसी ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट हो गया ना, 40 साल के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर उसका ओनर हो गया। जल्दी से बता दो किसकी कंपैटिबिलिटी में जा रहा है, एनआईपी में जा रहा है कि एनएमपी में जा रहा है? 2021 में तो एनआईपी और एनएमपी ज्यादा नहीं था, एनएमपी शाबाश। ये गया लीज पर, आपने न्यू कैप्टिव पॉलिसी ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट कर दिया। जो पोर्ट ऑपरेटर है वो 40 साल तक का लीज ले लेगा, तो आपने एक स्टेबिलिटी दे दी, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। दूसरा पॉइंटर है टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट, जैसे एनएचएआई है हाईवे के लिए, जो टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट है टैंप है, वो हमेशा टैरिफ रेगुलेट करता था, ये टैरिफ लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। इन न्यू कैप्टिव पॉलिसी जो भी प्राइवेट ऑपरेटर है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हिसाब से अपना टैरिफ लेवी करेगा, और जो आपका जो टैंप का अथॉरिटेटिव स्टेटस है उसको आपने कम किया, और जो बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट है वो अपने आप टाइम एंड अगेन इंडिपेंडेंट ऑडिट से कैलकुलेट करता रहेगा थिंग्स आर गोइंग ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और नॉट। बात समझ में आई है? इट इज टू प्रोवाइड ऑन मोर कॉम्पिटिटिव एज, क्योंकि इंडिया का 7,516 किलोमीटर का शोर लाइन, दैट टू इन इंडियन ओशन रीजन, वी आर फेलिंग टू गेन on the transshipment movement. अमृतकाल फॉर मरीटाइम जोन 2047 एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके लिए, और उसी के डोमेन पर कोस्टल इकोनॉमिक जोन सागरमाला 2.0 के साथ एसोसिएट किया गया। अब ये क्या चीज है थोड़ा ध्यान से देखना। या सर्विस पोर्ट मॉडल और टैंप का अथॉरिटेटिव स्टेटस कम करना समझ में आ गया। लैंडलॉर्ड मॉडल से हमने सर्विस पोर्ट मॉडल पे कन्वर्ट कर दिया, सर्विस पोर्ट मॉडल पे कन्वर्ट कर दिया मतलब अपने कैप्टिव पॉलिसी ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट मोबिलाइज किया है। अगर आपने प्राइवेट प्लेयर को मोबिलाइज देना है तो आपको उनको फ्री एज देना पड़ेगा टुवर्ड्स लेविंग द टैरिफ। अब उसी 2 मेजर पोर्ट हैं, जो ब्लैक बड़े डॉट हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स हैं, तो ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स को काउंट करना शुरू करो। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? Number 1 कोलकाता, number 2 हल्दिया, number 3 पारादीप, number 4 एनोर, number 4 को वाइजैक को काउंट करो, number 5 एनोर, एनोर इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है ना, कामराज बोलते हैं अब इसको। number 6 चेन्नई, number 7 तूतीकोरिन बता दिया, चिदम्बरम नाम है इसका। number 8 कोच्चि, number 9 एनएमपीटी दैट इज न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट, फिर मरमागांव, फिर जेएनपी, फिर मुंबई एंड फिर कांडला जिसका नाम दीनदयाल है। ये है आपके मेजर, ठीक है। नॉन मेजर बाद में काउंट करते हैं। जो न्यू मेजर मोबिलाइज हो रहे हैं उनका नाम देखो और ध्यान से नाम को याद करो, ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। न्यू में आपके पास आया बधावन महाराष्ट्र में, ये रहा। बेलीकेरी कर्नाटका में, ये रहा। आई एम हाईलाइटिंग इट विद ब्लू, ठीक है। न्यू के बारे में बात कर रहे हैं। It also incorporate the new proposed port as Tajpur, West Bengal, Sirkazi, Tamil Nadu, और जो minor ports हैं that is non major port, ये concerned state government के domain में। And are you noticing that integrating major minor ports with multimodal link is Sagarmala? And the proposed CEZ, Coastal Economic Zone, जो कि पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन देगा, ये वेरिएबल साइज ओवल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बात समझ में आई है? मल्टी मोडल रोडवेज भी है। आर यू रिकॉलिंग? रोडवेज में हमने भारतमाला में भी कहा पोर्ट को कनेक्ट करना, एनएचडीपी में भी कहा था पोर्ट कनेक्ट करेंगे। इनलैंड वाटरवेज में जब आप काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक लिंक कनाल बना रहे हो तो क्या वो सीआरजी में आपको हेल्प नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इससे आप नाम याद कर पाओगे। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हल्दिया आर ऑपरेशनल मेजर पोर्ट। ताजपुर इज न्यू पोर्ट इन कमिंग। ओडिशा में धामरा, गोपालपुर आर द माइनर पोर्ट। पारादीप इज अ मेजर पोर्ट। आंध्र प्रदेश में गंगावरम, काकीनाडा आर माइनर पोर्ट। वाइजैग, विशाखापट्टनम इज अ मेजर पोर्ट। समझ में आ रहा है? हैंड रेस करके बताओ। इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन आईपीआरसी इन द मल्टी मोडल ट्रांजिट। इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव डायग्राम नहीं हो सकता। यहीं से हम
अपना नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को एसोसिएट कर सकते हैं। पहले आप इसको लेकर हमें गो अहेड देंगे, फिर हम आपको लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बता दें। हमने आपको इसलिए बताया था पोर्ट्स के साथ हमारे पास एक थोड़ा लंबा बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि इट इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स। फिर पोर्ट्स में आप सिर्फ मेजर पोर्ट्स की बात करते हो, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। कोस्टल इकोनॉमिक जोन और सागर माला is taking an integrative approach of major and minor ports. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, इतनी आप लोगों ने ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव डेवलप कर लिया है कि जितने ईस्ट कोस्ट पोर्ट हैं ये सब के सब स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेनिफिशियरी हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का माने ट्रांस पैसिफिक ट्रेड रूट के, और जितने भी आपके वेस्ट कोस्ट पोर्ट हैं ये सब के सब स्वेज कनाल के बेनिफिशियरीज हैं। हैंड रेज कर दीजिए। और आपके मेन एग्जामिनेशन जीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, petro refining centers in India have marked their concentration in the western shoreline because maximum of the crude oil is coming from Persian Gulf region. हैंड रेस कर दीजिए। तो कांडला, मुंद्रा, हजीरा, दाहेज, पिपावर, सारे नाम दिख रहे हैं, सारे नाम लिखवा दिए आपको अभी थोड़ी देर पहले भी। मुंबई, मरमागांव, जेएनपीटी, यही सारे के सारे पेट्रोल रिफाइनिंग के लिए मेजरली जाने जाते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि चेन्नई में पेट्रोल रिफाइनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन जो डोमिनेंट है वो वेस्ट पर है। अगर ये वाला डायग्राम आपने नोटिस कर लिया है, 4 चीजें हैं, चारों चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। नए मेजर पोर्ट भी आपके रेडार पर आ गया, फंक्शनिंग मेजर पोर्ट्स भी आ गया, नॉन मेजर पोर्ट जिनको आप माइनर पोर्ट्स बोलते हैं, विच फंक्शंस इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, एंड प्रपोज्ड कोस्टल इकोनॉमिक जोन भी आ गया। यहां पर मल्टी मोडल लिंक्स को जनरेट करना है, and that is the crux of your national logistic policy. मल्टीमोडल, जहां पर जो मोड फेवरेबल हो हमें वाला मोड मोबालाइज। 2021 में हमारे पास कोई एनएमपी करके प्रोग्राम नहीं था ना। एनएमपी करके प्रोग्राम तो हमारा बाद में मोबालाइज हुआ, पर जो हमने जो कैप्टिव पोर्ट वाला डोमेन शुरू किया वो इसलिए था कि भाई आप एक प्राइवेट प्लेयर है, आपको ना तो टैरिफ लेवी करने का हक दिया गया, वो टैंप डिसाइड कर रहा है, और आपका ऑपरेशन में यूनियन गवर्नमेंट की नोडल मिनिस्ट्री का हमेशा इंटरफेरेंस है, क्योंकि वो तो लैंड लॉर्ड है, आपसे टेनेंट है, तो आपका जो ऑपरेशनल फ्रीडम है वो नहीं है। इसी वजह से इंडिया ने अपने सारे मेजर पोर्ट्स में डेवलप तो किया कंटेनर टर्मिनल, पर हम कभी भी ट्रांसशिपमेंट मूवमेंट को बेनिफिट नहीं कर पाए। दैट इज द रीजन देयर वाज द मॉडिफिकेशन इन द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर मरी टाइम एजेंडा, जिसको आप मरी टाइम अमृतकाल 2047 के साथ एसोसिएट कर दो, जिसमें ग्रीन फ्यूल भी ऐड कर दिया है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स भी ऐड कर दिया। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज एडेड, अदरवाइज वी वांट टू क्रिएट आउट more competitive edge, and it is in compatibility to NMP that we have already learned. ठीक है, अच्छा ये एक जो कन्वेंशनल डोमेन है उसको भी एक बार देख लो, फिर हम जाते हैं बोर्ड पर और आपको एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि कोस्टल रेगुलेशन जोन और एसआरजी, कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड सागरमाला, अभी हम सागरमाला की बात कर रहे हैं, इनके बीच में बस एक पॉइंट का डिफरेंस ये देख लो। जब आप सागरमाला के बारे में बात करते हो ना, तो आप सागरमाला में पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन या पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें पोर्ट लेड एसईजी भी है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मल्टी मोड, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है, पोर्ट कनेक्टिविटी है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमने जानबूझकर ICZM लिखा है, मैनग्रोव्स फॉर फ्यूचर याद आ रहा है, कॉलम नंबर 4 व्हेन वी वर डीलिंग अप विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो सागरमाला और कोस्टल इकोनॉमिक जोन बेसिकली कोरिलेट कर रहा है, आप मल्टी डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें। सागरमाला इज पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट सस्टेनेबल, ये 4 पिलर्स कहे जाते हैं सागरमाला। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के साथ ही अप्लाई, ठीक है। ये तो काफी ओल्डर डायमेंशन पर है, आपको सागरमाला के बारे में पता ही होगा। कोस्टल जो कोस्ट इकोनॉमिक जोन है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू टेक। हमें गो अहेड दे दो, हम बोर्ड पर लेकर जाएं। कोस्टल इकोनॉमिक जोन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एक्चुअली कोरिलेट्स टू नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP 2022 में अनाउंस किया गया, टू ओवरकम इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स
याद करो जब आप सीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने कहा चीपेस्ट एक्स फैक्ट्री प्राइस सीमेंट, बट हैंडलिंग चार्ज इतना ज्यादा है कि हमारे सीमेंट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ले ही नहीं पाते। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान में कन्वर्ट किया है, क्लैप बोलते हैं इसको। एंड व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ क्लैप एज बिल्डिंग ओवर एनएलपी, इसमें 8 एक्शन एरियाज है, जैसे गति शक्ति में 6 बताया था वैसे 8 एक्शन एरिया है, उसको आपको याद रखना चाहिए। So CLAP incorporate integrated digital logistics, export, import, logistics, human resource logistics। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कैटेगराइज कर दे रहे हैं, स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। स्टेट रोल और एंगेजमेंट, सर्विस इंप्रूवमेंट 1 2 3 4 5, सेक्टोरल specific logistic development of logistic park, इसको स्टार मार्क करते हैं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे। एंड नंबर 8 क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, फिजिकल एसेट है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी। माने बहुत जल्दी है, 2022 में आपने शुरू किया, लेकिन आपने इसको स्पेसिफिक एरियाज में डिवाइड कर दिया अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फंक्शन। और ये किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, जो क्लैप है वो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ एसोसिएट करता है, जिसमें जो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स हैं ये आपका जो कन्वेंशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके साथ रिलेट करेगा। हम उसको भी लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। हमारे साथ जरा जल्दी जल्दी लिख लो इसको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मोबिलाइजेशन 2005 से हुई है। मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो फॉरेन टेरिटरी है हमारे कंट्री का। आज की डेट में जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हो तो ये आप गॉट मोर देन 270, फिगर को राउंड ऑफ कर लो, अप्रोक्सीमेट 300 ऑपरेशनल एसईजीज हैं हमारे कंट्री। और जो ऑपरेशनल एसईजी हैं वो मल्टी फंक्शनल हो सकते हैं, सिंगल फंक्शनल हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंटर्स। अच्छा, जो एसईजी का जो डिमार्केशन है उसी में आप अप्लाई करते हो, क्योंकि जो जोन टाइप आप कवर करते हो ना एसईजी में, जो लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर लिखा है ना, तो जो जोन टाइप आप कवर करते हो एसईजी में, दैट इनकॉर्पोरेट्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री जोन्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, फ्री ट्रेड जोन, ये सारे अलग अलग डोमेन में काम करने वाले हैं। अर्बन एंटरप्राइजेस जोन, लॉजिस्टिक पार्क इनके साथ एसोसिएट करता है। Logistic park associate itself with the SEZ provisions that has been identified with EPZ, export processing या free zones या industrial estate या free trades। लिख लिया तो मैं जरा गो अहेड देंगे, हम आपको समझा। प्रधानमंत्री गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। प्रधानमंत्री गति शक्ति इंटरलिंक्ड विद NIP and NMP, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी दैट हैज बीन रिवैम्प्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान इंटीग्रेटेड विद एसईजी। और जब कोस्टल इकोनॉमिक जोन की बात करते हो तो इंटीग्रेटेड विद सागरमाला। आप किसी भी पॉइंट पर मल्टी मोडल के बारे में बात कर रहे हैं, whatsoever is conducive where so 2005 special economic zone act was passed and 2006 it marked up its implication. Special economic zone is implemented and mobilized in India as a foreign territory. Foreign territory का simple सा मतलब है that it will not be incorporating any of the general domestic regulation, tariff, etc. because we want to mobilize a special economic zone as exclusive export promotion zone. SEZ permits industries and services, not agriculture. SEZ's provisions have basically enhanced India towards export promotion. SEZs have created favorable infrastructure towards service and manufacturing. कोई denial नहीं है। SEZ has facilitated inclusion of investment in the Indian job creation. SEZs के डेवलपमेंट का कहीं कोई चैलेंजिंग एवेन्यू नहीं है, वो गलत है। लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर परमिटेड नहीं है, तो कल्टीवेबल लैंड को एसईजी में कन्वर्ट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। गलत भी हुआ, कई बार एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी सामने आए। SEZ have been a successful model and that has been now integrated with the logistic parks. और लॉजिस्टिक पार्क्स में इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आप सिंगल सर्विस या गुड एसईजी हैं, मल्टीपल हैं, आप किसी भी टाइप के लॉजिस्टिक पार्क को, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है चाहे फ्री ट्रेड जोन है, आप क्लैप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। क्लैप हैज बीन इंटीग्रेटेड विद
the national logistic policy का enlargement, which correlates with coastal economic zone. Coastal economic zone is multimodal. Port-led industrialization सागरमाला के साथ आपने इसमें multimodal link कर दिया. जो आपका coastal economic zone है वो क्या है? एक correlated nodal areas with port as your center and thereby the distribution. तो अप्लाई करो. अगर हर कोस्टल इकोनॉमिक जोन का ओवरलैप आता जाएगा, will it not facilitate decentralization of development? उसी को आपने इस डायग्राम के साथ एसोसिएट करके याद रखना है और मेरे ख्याल से बहुत आराम से याद हो जाता है, because that is what you have to take into consideration when it comes on to your remembering. फैक्चुअल चीज है तो यही, क्योंकि रोडवेज में आपने क्या कहा, पोर्ट को कनेक्ट करो. रेलवेज में आपने क्या किया, पोर्ट को कनेक्ट करो. वाटरवेज में आप क्या कर रहे हो, पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हो. तो कोस्टल इकोनॉमिक जोन इज व्हाट, कनेक्टिंग कोस्ट विद द एरियाज. सागरमाला क्या है, माला, गार्लैंड, इंटरलिंकिंग मेजर एंड माइनर पोर्ट्स विद मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. वही आ गया लॉजिस्टिक सेंटर. एसईजी को अलग कैसे कर रहे हो, एसईजी इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. यू आर मोबिलाइजिंग इट एज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैटेगरी. And India definitely in the globalized setup, I need to enhance on export promotion in order to sustain. तभी हमेशा कहते हैं ports are the gateways of international trade. नहीं, इसको ऐसे समझना है, ध्यान से सुनेंगे. मैप आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो. जब इंडिया ने 1991 में WTO साइन किया, इंडिया इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिग्नेटरी ऑफ WTO. तो हमारे पास तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आप कोई भी पोर्ट को देखो, एन्नोर वॉज JNP, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, इट इज अमंग द टॉप 30 कंटेनर टर्मिनल्स ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कंटेनर हैंडलिंग. ये 1989 में मोबिलाइज हुआ है, तो ग्लोबलाइजेशन से पहले हुआ है. एन्नोर को आप ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट बोलते हैं, जो एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो जितने मेजर पोर्ट्स हैं सबके सब ऑपरेशनल थे एट द टाइम व्हेन इंडिया बिकेम सिग्नेटरी ऑफ WTO. ठीक, India is having such favorable location on the map of world. Suez Canal route और Strait of Malacca route, दोनों को आप major trade routes of world में बोलते हैं, दोनों को आप major trade routes में लेते हैं. अब इंडिया का shoreline का benefit देखो, Suez Canal route जहां से half of the global container traffic चलता है, और Strait of Malacca जिसको आप third major trading route of the world बोलते हैं, दोनों के दोनों का transit तो Indian Ocean region से है. इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, जिसका नाम इंडिया पर बेस्ड है. इंडिया की वजह से ही तो इंडियन ओशन डिवाइडेड हो गया ना दो पार्ट में, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. अगर लैंड मास ऑफ इंडिया नहीं होता तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल थोड़ी होता. ठीक है, अब इसी पॉइंट पर समझो, अगर इंडिया का लोकेशनल बेनिफिट इतना स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा क्या था कि हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया. प्राइवेट पार्टिसिपेशन आई भी. लगभग सारे मेजर पोर्ट, कोई भी काउंट कर लो, मुंबई काउंट कर लो, JMP काउंट कर लो, कांडला, कांडला को कहते हैं चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन में हमारा कराची गया है ना, इसलिए कांडला डेवलप हुआ था 1965 में. सो कांडला लीजिए, चाहे मरमा गांव लीजिए, चाहे न्यू मंगलुरु लीजिए, या आप ईस्ट कोस्ट पर आ जाओ, चेन्नई ले लो, वाइजैग ले लो, सब में कंटेनर टर्मिनल्स डेवलप हुए बाय द प्राइवेट प्लेयर्स. तो प्राइवेट प्लेयर्स आए, पार्टिसिपेट हुआ, पोर्ट डेवलपमेंट हुआ. लेकिन पोर्ट डेवलपमेंट का फायदा क्या है, उसको जज करो. अगर मेरा ट्रांसशिपमेंट मूवमेंट सिंगापुर जाता है, हमें समझ में आता है भाई डेवलप कंट्री है. कोलंबो जाता है, कराची जाता है, तो भाई मुंबई जैसे मेगा पोर्ट सिटी में क्या कमी है कि कराची हैंडल कर सकता है ट्रांसशिपमेंट मूवमेंट, हम नहीं कर सकते. क्योंकि हमारे पास जितना पार्टिसिपेशन आया प्राइवेट प्लेयर का टू जनरेट एनहांस लॉजिस्टिक कैपेसिटी ऑफ सी पोर्ट, वो हाफ हार्टेड था. क्योंकि इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में, तो आपको आना था इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए. लेकिन इंडिया का पॉलिसी क्या था, रिग्रेसिव, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, लैंड लॉर्ड मॉडल, टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट का अथॉरिटेटिव स्टेटस. तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन वहां पर मुझे कोई ग्रोथ मोमेंटम नहीं मिल रहा. टाइमली 2021 मेजर पोर्ट ट्रस्ट अमेंडमेंट have given landlord model, service port model, captive port, टैंप का अथॉरिटी कम कर दिया. अब क्या होगा, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट ही तो होगा. हैंड रेस कर दो. जो हाफ हार्टेडली पार्टिसिपेट कर रहे थे वो फुल हार्टेडली पार्टिसिपेट करेंगे ना. आपने उनको टैरिफ लेवी का राइट दे दिया, आपने उनको कैप्टिव दे दिया इन लाइंस ऑफ NMP कि भाई आप 40 साल तक पोर्ट का रिलेटेड एक्टिविटी को हैंडल करोगे, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस.
तो इस विल बी इट डेफिनेटली विल बी एनहांसिंग द पोर्ट एनहांसमेंट कैपेसिटी। तो अगर आप पोर्ट की कैपेसिटी को एनहांस करोगे तो पोर्ट सब कुछ खुद ही थोड़े ही कंज्यूम करता है, उसको आपने हिंटरलैंड से लिंक तो करना ही पड़ेगा। तो हिंटरलैंड से लिंक करोगे तो क्या आएगा, कोस्टल इकोनॉमिक जोन। माइंडेड कोस्टल इकोनॉमिक जोन हैज टू बी कोस्टल। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुझे कोस्टल होना है। SEZs कैन बी इन एब्सोल्यूट कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। तो गड़बड़ मत करना, SEZs को आप लॉजिस्टिक पार्क के साथ एसोसिएट कर सकते हो, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स। दे कैन बी इनलैंड, दे कैन बी कोस्टल। और कोस्टल इकोनॉमिक जोन जो है वो सिर्फ कोस्टल एरिया के साथ। कोस्टल इकोनॉमिक जोन इज एनलार्जमेंट ऑफ द जोन अंडर सागरमाला। सागरमाला कह रही है माला बनाओ, मेजर माइनर पोर्ट्स को लिंक करो, मरी टाइम रूट को लिंक करो। कोस्टल इकोनॉमिक जोन कह रही है हिंटरलैंड को भी लिंक करो, इसलिए इसको आप लॉजिस्टिक प्लान के साथ एसोसिएट कर सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आज की डेट में इंडिया का, वो कोरिलेट करता है प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान that incorporate two umbrella domain NIP and NMP. Apart from it, it is correlated with the national logistic policy, जिसको आपने enhance किया है as comprehensive logistic action plan. Comprehensive logistic action plan में आपने sector specific specifications highlight कर दिए कि मुझे ये चीजों पर काम करना है। वहां पर जो logistic parks हैं वो associate करते हैं SEZ से। Every logistic park is not SEZ. Every SEZ is not logistic park. Every SEZ is not logistic park. And every SEZ is not coastal economic zone. बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि कोस्टल इकोनॉमिक जोन पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, SEZ एक्सटर्नल इकोनॉमी को एनहांस कर रहा है। आप जो भी चीज प्रोड्यूस करोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक्सपोर्ट के लिए करो। कोविड के टाइम में एक्सपोर्ट में बैरियर आया, SEZ प्लेयर्स को बैंकरप्सी फेस करना पड़ा, तो उस समय ये मोबिलाइजेशन शुरू हुई कि जैसे सिंगापुर में प्रोविजन है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ SEZ प्लेयर्स के अपने प्रोडक्शन को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने की परमिशन देनी चाहिए। हमारे जैसे कंट्री में पॉसिबल नहीं हो सकता। आप SEZ प्लेयर होकर ना तो GST पे करते हो, इनकम टैक्स हॉलीडे एनहांस करते हो, रेगुलर कस्टम सर्वेइंग नहीं होता है, टैक्स फ्री इंपोर्ट करते हो, यू हैव गॉट द कैपेसिटी ऑफ फ्री सब कॉन्ट्रैक्टिंग। माने आपको इतने बेनिफिट मिले हुए हैं क्योंकि आप SEZ के प्लेयर हो। हम वही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटसाइड SEZ, इनसे कोस्टल इकोनॉमिक जोन, हमें वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। और अगर आपने डोमेस्टिक सेल करना शुरू कर दिया तो हम तो खत्म। तो चैलेंज है, इन चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसी में कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान। ये कुछ नए अपडेशन हैं और हमें पता है कि बहुत सारे नाम देने के लिए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जानी जाती है। आपको इलेक्शंस टाइम है, कोई भी नया नेम पॉलिसी चेंज नहीं आना अब आपके रेडार पर। आप बस ये जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में या जो आपके नीति आयोग के डैशबोर्ड पर हमने लगभग सारी इंपॉर्टेंट अपडेशन आपको दी है, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और हम फंस जाते हैं। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो करते हैं कोस्टल इकोनॉमिक जोन और SEZ में। कोस्टल इकोनॉमिक जोन और SEZ सिनोनिमस नहीं है, और क्लैप का लॉजिस्टिक पार्क और SEZ भी सिनोनिमस नहीं है। रिलेट करता है बट सिनोनिमस नहीं है, क्योंकि SEZ is only for external economy. Logistic park is for handling logistic. I need to enhance on my handling capacity. अब वो मल्टी मॉडल होगा तो लॉजिस्टिक पार्क कहीं पर भी हो सकता है, वो एसोसिएट कर सकता है कोस्टल इकोनॉमिक जोन से भी और SEZ से भी। माइनर पोर्ट्स हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन कमर्शियल ग्रोथ, क्योंकि माइनर पोर्ट्स पर रिग्रेसिव नॉर्म ऑफ टैंप नहीं था ना। माइनर पोर्ट्स किसके फंक्शनिंग डोमेन पर हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के फंक्शनिंग डोमेन पर थोड़ी ना काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनहांस किया। मेजर पोर्ट में वो डिले हुआ, इसलिए मेजर पोर्ट को मेजर इसलिए भी बोलते हैं। 75% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड इज वाया मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट इज इन द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बट मेजर पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स ज्यादा है।
इसलिए जो आपका मेजर पोर्ट अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और इंपॉर्टेंट है, जो मेजर पोर्ट को एनहांस कर सकता है उसकी कैपेसिटी। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, बस एक उसको ऐड करने की आपको रिक्वेस्ट करेंगे। आपको जहां भी कुछ भी समझने में थोड़ी सी भी जर्क आती है, आप जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसको आप ले लीजिए। हमने आपको सारी अपडेशन अभी तक के लिए दी है। और जब आप रिविजन साइकिल में आओगे, और रिवाइज करने के लिए हम बिल्कुल यही बताएंगे, क्योंकि अभी आप कमिंग संडे को इसी टॉपिक पर टेस्ट दोगे, तो अभी तो हम यही बताएंगे कि आप इसी को रिवाइज करो। इसमें हमने इंडिया फिजिकल के भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, जैसे हमने पहले डिसाइड करा था, तो आप उसको भी रिवाइज करो, ताकि आपको जो चारों ब्लॉक में हमारे कौन कौन से वीकर पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। और फिर जब आप रिविजन साइकिल में आओ 31 मार्च के बाद, व्हेन यू आर डन विद योर टेस्ट, तो जो जो आपके वीकर पॉइंट है उस पर फोकस करो। आपके पास सब चीजें अपडेशन के साथ हैं। एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कवर किया है हमने। अपडेशन भी जितना आज तक की डेट में अवेलेबल है सब कुछ दिया आपको। आपको बस ये नोटिस करना है कि क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, तो इनका नेचर ऑफ क्वेश्चन अलग होगा पिछले साल में, पर जो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं वहां पर आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उल्टा जाएंगे। मतलब आप 2023 फिर 22 फिर 21 ऐसे करके प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। आई एम इन द पोजीशन ऑफ हैंडलिंग 75 80 85 क्वेश्चन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप नोटिस कर रहे होगे, व्हेन यू टेक प्रीलिम्स पेपर, अपने आप को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है कि एक रिस्क लेते हैं, रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि आंसर सही हो, बट हमेशा याद रखना चारों में से कोई भी नहीं आता, चारों में से कौन सा हो सकता है, या आई एम वेरी श्योर कि दो गलत है, अब बाकी दो में से कोई एक आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग इज सेम। तो रिस्क तभी लो जब आपको रिस्क लेना लगे कि जरूरी है। एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, आपने हाइपोथेटिकली, गॉड फॉरबिड यू आर इन दैट पोजीशन, आई डोंट थिंक यू विल बी इन दैट पोजीशन, कि आपने प्रीलिम्स का पेपर हाथ में लिया और आप मुश्किल से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर पाए, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहे, तो आपको पता चल गया कि भाई मेरा प्रीलिम्स तो इस बार होना नहीं है, तो रिस्क ले लो। पर जब आपने क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली 75 80 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि अपने दिमाग में ध्यान रखना, हम में से कोई भी पूरे 100 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। डू यू अग्री टू दिस? अपने अपने पास हमेशा एक लॉजिकल और रैशनल टारगेट लेकर चलना। हम 100 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, हम करने भी गए हैं 80 85 क्वेश्चन। आप अगर 75 80 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर चुके हो, आपको पता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको कर लिया, मेरे ख्याल से फिर रिस्क लेने का कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, नहीं लेना है फिर रिस्क, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग टेक्स मैक्सिमम टोल ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये बहुत हार्श रियलिटी है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको मेन लिखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे। तो प्रीलिम्स को थोड़ा सीरियसली लेना है और थोड़ा सा इंटेलिजेंटली लेना है। प्रीलिम्स में अपना लॉजिक को इतना फ्लेक्सिबल रखो, 2023 का बहुत आई ओपनर था कि आपका कोई भी ट्रिक एंड ट्रिक्स काम नहीं करेगा। द ओनली ट्रिक दैट विल वर्क इज दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। और वेल प्रिपरेशन के लिए सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, बाकी सारे सेक्शन के लिए भी एनसीईआरटी की थरो रीडिंग करना। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो अपना जो इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें भी कौन कौन से आपके वीकर एरियाज हैं जहां क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो, उनको हाईलाइट करो और ऊपर फोकस करो। पूरा अप्रैल का महीना, पूरा मई का महीना, अपने आप ही प्रिपरेशन फुल प्रूफ हो जाएगी। और जब रिविजन पर जाओगे तो डाउट्स डेफिनेटली आएगा, तो डाउट्स आएगा तो आई एम जस्ट अ मेल अवे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से अपना मेल प्रॉब्लम हमें मेल कर देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम फोन पर आपसे बात कर लेंगे, हम आपको बोलेंगे कॉल करने के लिए, हम कल कॉल कर लेंगे, नहीं तो हम मेल पर ही आपको आंसर दे देंगे।